नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम ही से शोभा बढ़ी संसार की। नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम ही से शोभा बढ़ी संसार की। નમસ્કાર મિત્રો, માણી રહ્યા છો આપ BS9 ટીવી વિશેષ અને હું છું આપની સાથે પ્રભાત। આજે આ એપિસોડ જ્યારે રેકોર્ડ થઈ રહ્યો છે ત્યારે ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે છે, એટલા માટે જ આ બે પંક્તિઓ ખૂબ જ સરસ રીતે રફી સાહેબે ગાઈ છે। આ ગીત છે આખું જે નારી ઉપર આધારિત છે, નારી શક્તિ ઉપર આધારિત છે। નર અને નારી આ બંને એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે અને નારીની જે શક્તિ છે એ અદ્ભુત શક્તિ છે। એ અદ્ભુત શક્તિને વંદન છે આજે ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે નિમિત્તે। નારી ક્યારેક મા હોય છે, ક્યારેક બેન હોય છે, ક્યારેક પત્ની હોય છે અને તમામ ફરજો જે છે એ નિસ્વાર્થ ભાવે નિભાવે છે, એટલે એને નારી કહીએ છીએ। દરેક નારી સન્માનને પાત્ર છે અને એમને રિસ્પેક્ટ આપીએ। એ તમારા માતા હોય, બેન હોય, પત્ની હોય, એક સારા મિત્ર હોય, રિસ્પેક્ટ એમનો અધિકાર છે અને રિસ્પેક્ટ એટલા માટે કે એ નિસ્વાર્થ ભાવે એમનો કર્મ કરે છે। આજે કોઈ પણ સ્ત્રી ધારે તો એ ફેમિલી પાસેથી સેલરી પણ લઈ શકે છે, કારણ કે પોતે વર્કિંગ વુમેન હોય, ત્યારબાદ પોતાના બાળકોનું ધ્યાન રાખે, પોતાના પરિવારનું ધ્યાન રાખે, તો તે પોતાના પરિવાર પાસેથી સેલરી પણ માંગી શકે છે, પણ કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થ વગર તે આ કાર્ય કરે છે અને તમામ કાર્યો એકદમ દિલથી નિભાવવાની કોશિશ કરે છે। આજે બાળકનો જ્યારે જન્મ થાય, ઘણા લોકોને ખ્યાલ હશે, જે અમારા દર્શકો છે એમાંથી ઘણા બધા લોકો ડૉક્ટર્સ પણ છે, તો જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય ને ત્યારે જે વેદના સહન કરે છે જે સ્ત્રી, એ તો ફક્ત સ્ત્રી જ સમજે, બીજું કોઈ ના સમજી શકે। કારણ કે એવું કહે છે ડૉક્ટર્સ કે 200ની ઉપર તમારા જે બોન્સ છે, હાડકાઓ છે ને, એમાં ફ્રેક્ચર થઈ ગયું હોય ને એવો દર્દ મહેસૂસ કરે છે સ્ત્રી જ્યારે તે કોઈ બાળકને જન્મ આપે છે। એટલે આ મહાન શક્તિ છે, નારી શક્તિ છે, અદ્ભુત શક્તિ છે। એને જેટલી વખત પણ વંદન થાય તો વંદન કરજો અને જ્યારે પણ કોઈ પણ નારીને આપણી જરૂર પડે તો મૂક પ્રેક્ષક બનીને ખાલી દ્રશ્યો નાટકો જોઈએ નહીં, પણ એની સુરક્ષા કરવી, તમામ સમાજમાંથી અસામાજિક તત્વોની સામે એની સુરક્ષા કરવી એ દરેક પુરુષની ફરજ છે, રિસ્પોન્સિબિલિટી છે। મિત્રો, આજે BS9 વિશેષમાં મારી સાથે ફરીથી જોડાઈ ગયા છે શ્રીમતી અંજલિ ત્રિવેદી, જેઓ ડાયટિશિયન છે, ન્યુટ્રિશન એક્સપર્ટ છે અને ઘણી બધી વાતો એ તમારી સાથે શેર કરશે કે જે તમે નથી જાણતા। આજે ખાસ વુમન્સ ડે છે, એટલે આપણે જે વુમન્સને જે પ્રોબ્લેમ થાય છે, જેમ કે PCOS છે, મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ, એમાં ઇરેગ્યુલરિટી, અનિયમિતતા આવે છે, જે માસિક ધર્મ સ્ત્રીઓને થાય છે એમાં ઘણી વખતે ઇરેગ્યુલરિટી થાય છે। PCOS શું છે, ડિપ્રેશન અને એન્ઝાયટી, એની સામે કેમ લડવું, આ તમામ વિષયોं ऊपर चर्चा करीशू આજે अंजलि मैडम साथे। अंजलि मैडम, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अंजलि मैडम, જેમ આની પહેલાં પણ અંજલિ મેડમે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ માહિતીઓ શેર કરી હતી ડાયટ વિશે। ડાયટ આપણું કેવું હોવું જોઈએ, શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને વજન વધે છે તો એને કેવી રીતે કંટ્રોલમાં લાવવું જોઈએ, એની ચર્ચા આપણે ગયા એપિસોડમાં કરી હતી। આજે જે સ્ત્રીઓને, જે વુમેન્સને જે प्रॉब्लम्स થાય છે એના વિશે આજે चर्चा करीशू। तो मैडम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि
डिप्रेशन, एंग्जाइटी अभी तो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जो पीरियड से हम लोग गुजरे ये 2-3 साल, Yes. तो डिप्रेशन जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखा जा रहा है। काफ़ी साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड्स हैं वो कह रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत काफ़ी लोग डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ब्रेड एंड बटर है, रोज़ी रोटी है, वो बंद हो गई, तो उसके कारण अचानक से ये क्या कहते हैं, अचानक से ये सिचुएशन आ गई, तो उसका सामना कैसे करें। तो ऐसे बहुत सारे केसेस उनके सामने आ रहे हैं और वो उनको क्योर कर रहे हैं पेशेंट्स को। तो आप क्या कहेंगे डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बारे में, कैसे सामना करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि व्यूमेंस अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक ये फेज़ ऐसा गया है कोरोना का, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जॉब चली गई या फैमिली की थोड़ी अर्निंग कम हो गई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी के किसी भी फेज़ में आप कोई भी गलत कदम उठाएं। सो एक हेल्दी मील, एक बैलेंस्ड मील अगेन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप एक डिप्रेशन फेज से भी अगर निकल रहे हैं और अगर आप अपने बॉडी को नरिश रखते हैं, तो ये बहुत ही क्लियर कट सिम्टम दिखाता है कि आप इजीली उस फेज से निकल सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूमेन की लाइफ में तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी एक पार्ट होता है, ये सबकी लाइफ में एक ना एक बार आता ही है। फिर वो चाहे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो या प्रेगनेंसी के बाद कोई किसी को दिक्कत आई हो, या प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कोई फेज़ ऐसा होता है जहाँ पे कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारी बॉडी इंक्रीज़ हो रही है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे फेज़ होते हैं जहाँ ईजिली वुमेन्स गो थ्रू कर जाती हैं। सो एक बैलेंस्ड मील, रोल ऑफ डाइटिशियन यहीं पे है कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो उसे डाइट से कैसे ठीक किया जा सके। और हमेशा हमने ये सुना है कि जैसा अन्न वैसा मन। सो प्लीज़ जो खाना है, जो आप बैलेंस्ड मील जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ईजिली आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बाहर निकल सकते हैं। एंड शॉर्ट लेडीज़, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये वाले फेजेस में एक बैलेंस्ड मील लेके अपने साइकेट्रिस्ट से और अपने डाइटिशियन से बात कीजिए, एंड एक अच्छा खाना खा के आप अपने हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को भी बहुत स्टेबल रख सकते हैं। मैडम बहुत ही મહત્વપૂર્ણ જાણકારી આપને દી। મિત્રો, આમનું કહેવાનું એવું છે કે જે સ્ત્રીઓ છે એ ખૂબ જ કેપેબલ હોય છે અને ડિપ્રેશનથી આસાનીથી લડી શકે છે। ડિપ્રેશન, હતાશાનો અનુભવ માત્ર સ્ત્રી નહીં પણ માત્ર પુરુષો પણ નહીં, બધા કરે છે। કારણ કે એક પીરિયડ લાઈફની અંદર એવો આવે છે, કારણ કે ચડતી પડતી, અપ એન્ડ ડાઉન લાઈફની અંદર તો ચાલતું જ રહેવાનું છે। અને ક્યારેક એવી સિચ્યુએશન આવે કે આપણે હતાશ થઈ જઈએ, ત્યારે તમારે છે ને ખાલી એટલું જ કરવાનું છે, તમારે કોઈને વાત કરવાની છે। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे एक हमारे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड हैं, वो जब आए थे तो उन्होंने बताया कि कई लोग डिप्रेस होने के बाद में अंदर अंदर है ना वो बहुत गिल्टी खुद को फील करने लगते हैं और किसी से बात नहीं करते। મિત્રો, હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા છે ને આપણે મૂવીઝ પણ હિન્દીમાં જોઈએ છીએ, સિરિયલ્સ પણ આપણે હિન્દીમાં જોઈએ છીએ, કારણ કે ગુજરાતી જે મૂવીઝ આવી રહી છે, ઘણી બધી મૂવીઝે ટ્રેન્ડ સેટ કર્યું છે, જેમ કેવી રીતે જઈશ, છેલ્લો દિવસ, પણ હજી લોકો ગુજરાતી મૂવી જોવા જતા નથી। પણ આપણે હિન્દી સમજીએ છીએ અને હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા છે। અને મેડમ જે છે એ ગુરગાંવ હરિયાણાથી બિલોંગ કરે છે અને હું આશા રાખું છું કે આપ જે કંઈ અત્યારે કન્વર્સેશન, જે કંઈ વાતચીત થઈ રહી છે એ આપ સમજી જશો। અને જો ના સમજો તો કોમેન્ટ બોક્સમાં આપ જણાવી શકો છો। જે લોકો સોશિયલ મીડિયામાં જોશે એ લોકો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવે, અને જે લોકો ટીવીમાં જોઈ રહ્યા છે એ લોકો પણ અમારો સંપર્ક કરીને કંઈ પણ આપ મેડમને પૂછવા માંગતા હોય તો આપ પૂછી શકો છો। કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય હેલ્થ રિલેટેડ, સ્વાસ્થ્ય रिलेटेड, आप एमने पूछी सको છો। और मैडम, उन्होंने ये जो डॉक्टर चेतन हासलिया जो आए थे, उन्होंने ये बात कही कि कई बार ऐसे पेशेंट्स बात नहीं करते, तो बात न करने की वजह से वो सुसाइड जैसा एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। तो आप क्या कहेंगी कि बातचीत होनी चाहिए?
सर बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे कल्चर में अभी भी एक रिजर्व्ड नेचर आता है, स्पेशली जब मैरिड वीमेन की बात आती है तो ऐसा लगता है कि बस ससुराल बस ससुराल में जो भी हो रहा है बस आपको वही हैंडल करना है या आपके ऊपर है। बट पेरेंट्स की भी इक्वली उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर आपकी डॉटर वहाँ पे खुश नहीं है या वहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रही जो उसने सोचा था या जो उसके माइंड में था, तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को भी समझिए। हर जगह डॉटर को ब्लेम करना भी गलत है। और यही सेम चीज़ ऑपोजिट है कि अगर डॉटर नहीं हैंडल कर पा रही तो दोनों फैमिलीज़ को मिल के कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि आपको साथ रहना है, अलग रहना है, कैसे रहना है, किस तरीके से आप घर में रहें कि आपकी फैमिली और आप दोनों ग्रो कर सके। क्योंकि बोलते हैं ना कि बहू घर की लक्ष्मी होती है एंड बेटी घर की लक्ष्मी होती है। तो फिर लक्ष्मी को आप क्यों नहीं समझ पाते, क्यों उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों फैमिलीज़ के लिए और स्पेशली हस्बैंड्स के लिए भी कि आप अपनी घर में जो अपनी फैमिली छोड़ के जो लड़की आई है उसका ध्यान रखिए। सुसाइड आजकल बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है, उसका मेन रीज़न यही है कि लड़कियां अपनी बात बोल ही नहीं पाती। उनको लगता है, वो अपने आप ही सोचने लगती हैं कि अगर हम ये बोलेंगे तो झगड़ा होगा, अगर ये करेंगे तो ये नहीं कोई समझेगा। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। आप धीरे धीरे अपनी बातों को सामने रखिए, आप बताइए। अगर आपकी चीज़ें सही हैं, अगर आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को सही पॉजिटिव वाइब देती हैं तो वो चीज़ें लोग समझेंगे एंड आपको डेफिनेटली आपकी बात समझ के आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। सो प्लीज़ आप अपने आप को बैक फुट पे मत रखिए। आप अपने आप को फ्रंट फुट पे रख के, आप जैसे घर के खाने बनाने में सबका दिल जीतने में एक लड़की बहुत ही कामयाब होती है, स्पेशली जब वो शादी करके अपने इन लॉज के यहाँ पर आती है। तो प्लीज़ घबराइए मत। ये सुसाइड जैसा एक स्टेप करने से पहले आप अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने इन लॉज के बारे में जो आपसे इतना प्यार करते हैं उनके बारे में ज़रूर सोचिए। एंड प्लीज़ हेल्दी खाइए ताकि ये ऐसा ख्याल ही आपके माइंड में ना आए कि आपको सुसाइड करना है या आप डिप्रेशन में चले जाओ या एंग्जाइटी होने लग जाए। जितना हेल्दी और जितना अच्छे मील्स आप कंज्यूम करेंगे उतना कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर एंड जितना कॉन्फिडेंस रहेगा उस कॉन्फिडेंस से आप अपनी बात सबके सामने रख पाएंगे एंड जितनी अच्छे से आप अपनी बात रख पाएंगे तो सुसाइड केसेस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। જી બિલકુલ। અને મિત્રો, ગુજરાતીમાં પણ ઘણા બધા લેખકોએ લખ્યું છે કે જે વહુ હોય છે એ આવે છે એનો આખો સંસાર મૂકીને, એના મમ્મી પપ્પાને મૂકીને એ જ્યારે આવે છે તો એને તમે પોતાની દીકરી સમજશો ને તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે। તમે એને વહુની દૃષ્ટિએ ના જુઓ, તમે એને પોતાની દીકરી જ સમજો। અને સાસ માટે પણ એ લાગુ પડે છે, સાસુ હોય તો એના માટે પણ એ લાગુ પડે છે અને દીકરી માટે પણ। અને ઘણી વખતે દીકરી પણ સાસુને સાસુ સમજે છે, પણ સાસુને જ્યારે એ માં સમજશે ને ત્યારે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે। કારણ કે એને તમે માની દ્રષ્ટિએ જુઓ। તમારી માં કેવી હોય છે? તમારી માં નિસ્વાર્થ હોય છે, તો એ પણ તમારી માં જ છે, ફક્ત રૂપ જુદો છે। તો એને માની દ્રષ્ટિએ જુઓ। અને દીકરીને પણ એ લાગુ પડે છે અને સાસુને પણ એ લાગુ પડે છે, વહુને પણ લાગુ પડે છે। જ્યારે તમે આ ભાવથી જોવો છે ને તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય છે। અને એવું કહેવાય છે ને કે એક હાથથી તાળી વાગતી નથી, વાંક તમારો પણ છે, મારો પણ છે। એટલે એ વાતને समझવું खूब ज़रूरी है। दूसरी बात मैडम, एंग्जाइटी की। तो एंग्जाइटी में क्या होता है कि पर्सनली सब लोग फील करते हैं, मैं भी फील करता हूँ, आप भी फील करते होंगे कि जब हमारा कोई काम नहीं होता, सपोज, तो काम नहीं होने के कारण, जैसे कि अभी ये ब्रिज बन रहा है राजकोट के अंदर, इतने सारे ब्रिज बन रहे हैं कि हम हैरान परेशान हो जाते हैं। एक तो ट्रैफिक का सेंस ही नहीं है बिल्कुल लोगों में। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी अथॉरिटीज़ है, पुलिस अथॉरिटीज़, उनके साथ बात करें और ट्रैफिक अवेयरनेस का एक कैंपेन छेड़ा जाए, एक अभियान शुरू किया जाए जिससे लोगों के अंदर कुछ जागृति आए, कुछ अवेयरनेस आए, ताकि लोगों के अंदर ज़्यादा परेशानी ना आए। तो क्या है कि ये छोटे छोटे कारण की वजह से भी एंग्जाइटी होती है, क्योंकि आदमी हैरान परेशान हो जाता है, फिर एंग्शियस फील करने लगता है। तो इसमें क्या, इसका क्या इलाज है?
मैडम? सर ये तो मेरे को ऐसा लगता है या टोटली आपके ऊपर है कि आपको ये सब चीज़ें देख के एंग्शियस होना है या बेटर राजकोट को देखना है, क्योंकि जितने ज़्यादा ब्रिजेस बन रहे हैं राजकोट में, आगे आने वाले 2-3 साल में राजकोट बहुत अमेजिंग दिखेगा, क्योंकि इतने सारे ब्रिजेस होंगे, ऑफ कोर्स हमारा ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में आएगा। तो जब भी आप ये चीज़ सोच के एंग्शियस होते हैं कि रोड नहीं बनी, देखो ये सारी जगह एक साथ ब्रिज का काम स्टार्ट कर दिया, आप 2 साल बाद का सोचिए कि 2 साल के बाद आप कितनी ईजिली अपनी फैमिली के साथ कार पे, बाइक पे, स्कूटर पे, साइकिल पे ट्रैवल कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज अच्छे रोड्स बन गए हैं। तो एंग्शियस होने की बात ही नहीं है, जस्ट 10 सेकेंड जस्ट ओम कीजिए, आई थिंक ये आपका पर्पस सॉल्व कर देगा। नहीं, वो तो ठीक है। फ्यूचर सर एक चीज़ सोचनी चाहिए कि आगे आने वाले 2 साल में ये प्रोजेक्ट्स हमें डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाले हैं। पॉजिटिव साइड तो नो डाउट मैडम, ठीक है। Yes, sir. लेकिन जैसे कि मैं सेंस की बात कर रहा हूँ ना, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा Yes, sir. कि जो मुड़ने का रास्ता होता है, ठीक है, वहाँ पे पुलिस ऑथोरिटीज ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं कि भाई ये मुड़ने का रास्ता है। Yes, yes. फिर भी लोग उसको ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। तो ये सेंस का भी अभाव है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। Yes. और ये सिर्फ पुलिस की ड्यूटी नहीं है, ये हमारी भी हमारी ड्यूटी duty है, है। Yes, ठीक है, कि इस बात को हम समझें। Yes. जैसे कि जिब्रा क्रॉसिंग है, तो जिब्रा क्रॉसिंग जब भी आपके सामने आता है तो आपको आपकी गाड़ी स्लो कर देनी है। Yes. वो वॉकर्स के लिए है। Definitely. वॉकर्स जब चल के जाते हैं, क्योंकि कई बार बूढ़े बुजुर्ग बीमार लोग भी वहां से गुजरते होते हैं। Absolutely, तो sir. कई बार लोग तो अपनी गाड़ी को जिब्रा क्रॉसिंग पे ही पार्क करते हैं, आपने भी देखा होगा। Yes. लेकिन वो वॉकर्स के लिए है। Yes. तो ये जो सेंस, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं ट्रैफिक अथॉरिटीज से मैं खुद बात करूं और ये जागृति जो है ये आए लोगों के अंदर, क्योंकि ये सबका कर्तव्य है, सबकी ड्यूटी है। बिल्कुल। एज अ सिटीजन अगर हम दूसरा कुछ ना करें, अपने कर्तव्यों के बारे में सोचें कि हमको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट हम इस सिस्टम को बेटर करने में कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट तो कर सकते हैं ना। यस सर, इसमें मैं ज़रूर एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी। 2015 में जब मैं राजकोट में आई थी, तब मैंने न्यूज़पेपर्स में, इवन न्यूज़ में बहुत सारे बार टेलीकास्ट देखा था कि लेफ़्ट टर्न हमेशा शॉर्ट होना चाहिए एंड आप प्रॉपरली लीजिए एंड राइट टर्न शुड बी द लॉन्ग टर्न। बट यहाँ पे ऑपोजिट है, लोग लेफ्ट टर्न ऐसे लॉन्ग लेके आते हैं एंड राइट टर्न एकदम शॉर्ट ले लेते हैं। सो इसके ऊपर भी पुलिस कमिश्नर वाज एक्चुअली वर्किंग एंड बहुत सारे सेशंस में उन्होंने ये चीज़ कही थी कि राइट एंड लेफ्ट टर्न एंड आपकी रेड लाइट क्रॉसिंग, ग्रीन लाइन, कहाँ से यू टर्न लेना है। आई थिंक वो लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, बट येस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बनती है। प्लस ऑन प्लस आई डोंट नो, ऐसा सब लोग समझते हैं कि लड़कियां एक अच्छी ड्राइवर नहीं होती, लड़कियां ट्रैफिक जाम कर देती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत लड़कों से बहुत अच्छी ड्राइविंग एंड राइडिंग करती हैं। सो प्लीज़ जब भी कोई लड़की ड्राइव कर रही है तो अननेसेसरली, अगर वो सही है तो भी हॉन्क मत कीजिए। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत बार देखी है। इफ़ अ गर्ल इज़ ड्राइविंग, अननेसेसरली सब लोग हॉन्क करना स्टार्ट कर देते हैं कि इससे रिवर्स नहीं होगा या उससे बैक फ्रंट नहीं होगा। प्लीज़ लड़कियां सब कर सकती हैं। सो गिव अस अ चांस एंड प्लीज़ वो लेफ्ट साइड वाले बैरिकेड्स छोड़ दीजिए, बिकॉज दैट्स फॉर द लेफ्ट साइड ट्रैफिक। थैंक यू। मैडम वो बात आपने, 4 व्हीलर्स का तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि 4 व्हीलर्स के लिए तो लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। Yes, लाइसेंस लेना ही yes, पड़ता है। yes. ठीक है, लेकिन राजकोट के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मोस्ट ऑफ द लेडीज हु आर राइडिंग 2 व्हीलर्स, दे डोंट हैव लाइसेंस। Oh, so then it's a crime. I feel yes, license is लाइसेंस के mandatory. बगैर। और कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं उनको भी प्रमोट करते हैं कि आप ड्राइव कीजिए। जो 18 साल के नीचे के हैं वो भी ड्राइव करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है, गियरलेस स्कूटर होता है। Yes. और मैंने कई लेडीज़ को पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी हम चलाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि लेडीज़ को ज़्यादा चेक नहीं किया जाता राजकोट में।
उनसे लाइसेंस नहीं मांगा जाता है? नहीं नहीं सर, करना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल, क्योंकि जब मैं दिल्ली में और गुड़गांव में राइड करती हूँ या ड्राइव करती हूँ, वहाँ कोई फ़र्क नहीं होता कि आप लड़की हो या लड़का हो। आपने हेलमेट नहीं पहना या आपके पास लाइसेंस नहीं है, यू आर इक्वली, जितना मेंस को सेम चालान लगेगा, सेम लेडीज़ को वही चालान लगता है। ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं। तो सेम वे अगर रूल्स आ रहे हैं तो वो दोनों के लिए इक्वल होने चाहिए, फिर वो हेलमेट का हो या लाइसेंस कैरी करने का, इट शुड बी देयर। मैंने ऑथोरिटीज से बात भी की थी इसके बारे में, तब उन्होंने मुझे ऐसा बताया था, बहुत पहले की बात है, कि हमारे पास लेडी कांस्टेबल्स नहीं है, इसके कारण हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते। और क्या होता है कि कई बार एक संकोच सा भी रहता है ना मन में कि लेडीज़ को पूछना या लेडीज़ को, इसीलिए लेडीज़ को ज़्यादा वो नहीं करते, परेशान नहीं करते। लेकिन जैसा आपने बताया कि नियम कानून, सीट बेल्ट के लिए आजकल बहुत रोकते हैं, मेरे को भी ध्यान है। तो सीट बेल्ट तो मैं वैसे भी हमेशा से लगाती हूँ, पर एक आध बार की बात नहीं है, वो तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन टू व्हीलर्स का जो चेकिंग होना है चाहिए सर, एक बार आई थिंक लाइसेंस के साथ एक ड्राइव होनी चाहिए। ये मेरा भी सूचन है अथॉरिटीज को। एंड एक हेलमेट भी कंपलसरी होना चाहिए। आई फील अगर आप लॉन्गर डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं, स्पेसिफिकली हेलमेट होना चाहिए, लॉन्गर हो या शॉर्टर। जितनी मेंस की लाइफ इंपॉर्टेंट है, उतनी ही लेडीज की लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। एंड एक हेलमेट कैन एक्चुअली सेव योर लाइफ, सेव योर ब्रेन, एंड ब्रेन इज वेरी इंटीग्रल पार्ट, जरूरी है हम सबके लिए। सो प्लीज हेलमेट इज कंपलसरी, वी शुड डेफिनेटली डेफिनेटली। मैम अब बात करते हैं PCOS की। एक्चुअली PCOS મિત્રો છે શું એ અત્યારે મેડમ પાસેથી આપણે જાણીએ કે આ લેડીઝ પ્રોબ્લેમ છે અને અવેરનેસ કેટલી છે, કારણ કે ઘણા લોકો છે ને એ કેરલેસલી ध्यान नहीं देता, पर खूब जरूरी है। तो मैडम ये PCOS क्या है बेसिकली, वो बताइए। PCOS is polycystic ovarian syndrome. In fact, there is a PCOD, that is polycystic ovarian disease. हुआ क्या है कि कोरोना टाइम की वजह से जो हमारा स्लीपिंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आज कोई भी लड़की जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आती है तो मैं पहला क्वेश्चन यही पूछती हूँ कि आप सोते कितने बजे हो, व्हाट इज़ योर स्लीपिंग साइकिल। तो आई गेट एन आंसर कि 3 बजे सोते हैं मैम, 4 बजे सोते हैं। क्या कर रहे थे हम, OTT प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई सीरीज़ देख रहे थे। अब हुआ क्या है इन सब चीज़ों की वजह से कि आपने जो सीरीज़ देखी उसका टाइमिंग 3 से 4 बजे, एंड वही एक टाइम होता है 10 o'clock से हमारे हार्मोन रिलीज़ करने का एक टाइम होता है, एक पैटर्न होता है 2 बजे 3 बजे, एक कॉर्टिसोल एंड बहुत सारे हार्मोन्स लेडीज़ के अंदर जो है वो रिलीज़ होते हैं। आपने वो पूरी साइकिल ही डिस्टर्ब कर दी, उसकी वजह से अब जो लड़कियों में व्हाट इज़ हैपनिंग कि उनको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स हो रही हैं, अनवांटेड हेयर यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, कई बार नेक के पीछे भी लाइंस आर विजिबल, किसी किसी को एक्ने इश्यूज हैव स्टार्टेड कमिंग, किसी किसी का वेट गेन एट सडन बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी किसी का वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं सो प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, आपको PCOS या PCOD हो सकता है। एंड पिछले 2 साल में राजकोट में ये PCOS एंड PCOD बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है गर्ल्स के अंदर, ड्यू टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कि आप टाइम पे सोते नहीं हैं, आप टाइम पे खा नहीं रहे, आप सिर्फ जंक फूड ही इनटेक कर रहे हैं, घर के मील्स आपने बहुत कम कर दिए हैं। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए एंड अपने डाइटिशियन को कंसल्ट कीजिए, ताकि आप उसके अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकें, आप अपने फूड हैबिट में चेंजेस कर सकें, आप एक्सरसाइज कर सके, क्योंकि ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आज PCOS है इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिवर्स नहीं हो सकता। हम अपने ट्रायल से, अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। एंड डियर गर्ल्स एंड लेडीज़, प्लीज़ 3-4 बजे मत सोइए, अपना सोने का टाइम 10 साढ़े 10 बजे ही रखिए, जितना अर्ली हो सके उतना ही रखिए, ताकि आपको थायराइड या PCOS, PCOD, डायबिटीज़ कोई भी ऐसी इश्यूज़ ना आए, क्योंकि ये सारे इश्यूज़ जो हैं अब ये लाइफस्टाइल इश्यूज हैं। एंड जितना लेट आप सोएंगे उतना ओबेसिटी बढ़ती जाएगी, फिर आप बोलोगे कि अब हमें पतला होना है, ओबेसिटी नहीं जा रही, फिर शुगर थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग, आपका इंसुलिन इनसेंसिटिविटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो हमें ऐसा सब नहीं चाहिए। प्लीज़ अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखिए एंड टाइम पे सोइए, ताकि इनफर्टिलिटी इश्यूज भी हम आगे कम कर सकें, जो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं।
दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है मैडम कि ये जो મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ है यस सर મિત્રો ગુજરાતીમાં આપણે માસિક ધર્મ કહીએ છીએ જે हाँ जी। લેડીઝને દર મહિને જે Yes. 5 દિવસનું જે થાય છે तो मैडम इसका जो इरेगुलरिटी है ये कई बार 28 दिन में नहीं होता है, कई लेडीज़ को 1.5 महीने में होता है, कई का डिले हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? सर बेसिकली ये डिले होना ही नहीं चाहिए। नेचुरली ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है एंड एवरी 28 डेज़ में हर लेडी को ये वन टाइम होता ही है। सो अगर आपको कॉन्टिन्यूस गैप आ रहे हैं या एक एक 1.5 2 महीने हो रहे हैं, गैप्स आते जा रहे हैं आपकी साइकिल में, इट माइट बी आपके किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। तो आप प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए एंड देन आप एज़ पर हर एडवाइस जो भी वो दें, हिजर और हर एडवाइस, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक रेगुलर साइकिल है। अगर इसमें कहीं पे भी गैप्स आते हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इसके लिए कंसल्ट कीजिए। मैडम दूसरी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लेडीज़ के बारे में अगर बात करें तो आपके पास तो कई पेशेंट्स आते हैं, यस सर। तो कॉमन प्रॉब्लम क्या फेस करती हैं आजकल लेडीज़ आपकी पेशेंट्स? सर कॉमन प्रॉब्लम्स यही होती है कि मैम मेरा वेट बढ़ गया है, मैं पहले बड़ी बहुत स्लिम थी, अब मैं स्लिम नहीं हूँ, मुझे कॉलेज के क्लोथ्स में फ़िट होना है, मुझे 4 साल पुरानी अंजलि दिखना है, या ऐसे सब बहुत सारे क्वेरीज लड़कियों को होते हैं। इनफैक्ट जिनकी शादी होने वाली होती है, इट्स लाइक कि मैम मुझे पतला कर दो, 3-4 महीने में मेरी शादी है। सो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि 30s के बाद एक मिनरल डेंसिटी भी हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होती है एंड वेट गेन होना 3 to 4 kgs उस फेज़ में बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो हर फेज़ में डिफरेंट दिखना ये भी तो एक अच्छा फेज़ है, ये प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए। आप 40s में 20s जैसा दिखना चाहते हैं यंग, दैट इज़ गुड, बट येस अगर आप ये बोले कि मेरी बॉडी बिल्कुल वैसी हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करना है, एक अच्छा हेल्दी मील लेना है। सो डेफिनेटली आप उतने यंग दिखेंगे, नॉट बाय हार्ट, ऑल्सो बाय फेस, ऑल्सो बाय बॉडी, ऑल्सो बाय लुक्स। बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पुरानी चीज़ों को कंपेयर मत कीजिए। आप आज जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करके इसमें क्या ब्यूटीफुल हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ लेडीज़ अपने ये छोटे छोटे कंसर्न्स को बहुत बड़ा मत कीजिए, ये बहुत छोटे कंसर्न है। सिर्फ शादी के लिए क्यों फिट दिखना है आपको, आप हर दिन के लिए फिट रहने के लिए काम कीजिए। आप अपने फिटनेस के ऊपर वर्क कीजिए ताकि आप हर दिन अच्छे दिख सकें। दैट इज इम्पोर्टेंट। જેટલા પણ લેડીઝ અત્યારે આ જોવાના છે આ ખાસ વિશેષ એપિસોડ, એમને મારું સૂચન છે કે જેમ મેડમે કીધું ને કે ધ્યાન બહુ દેવાની જરૂર નથી, એને તમે ઇગ્નોર કરો અને જેવા છો પણ તમે ખાલી તમારા ડાયટનું ધ્યાન રાખો અને પ્રોપર એક્સરસાઇઝ યોગા કરી શકો છો. અત્યારે ગવર્મેન્ટે ખાસ યોગ બોર્ડની રચના કરી છે અને તમને નિઃશુલ્ક યોગા શીખવાડવામાં આવે છે. કોઈ પણ જાતનો ખર્ચ નથી, ફ્રી છે. એટલે તમે યોગ બોર્ડની વેબસાઇટમાં જશો એટલે તમને તમામ માહિતી મળશે. યોગ શિક્ષક તમને સંપર્ક કરશે સામેથી અને તમારી નજીકના એરિયામાં જઈને તમે યોગા શીખી શકો છો. યોગા આપણી પ્રાચીન પદ્ધતિ છે, ઉપચાર છે, એ ખૂબ જ મહાન ઉપચાર પદ્ધતિ છે. યોગા બેસ્ટ એક્સરસાઇઝ છે. તમે બીજું કંઈ ન કરી શકતા હોય તો સૂર્ય નમસ્કાર કરી શકો છો. અને તમને કોઈ પણ સ્પોર્ટ્સ જેમ કે બેડમિન્ટન રમવું ગમતું હોય, વોલીબોલ રમવું ગમતું હોય, એમાં તમે અડધી કલાકનો સમય કાઢો. તમે આઉટડોર સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી પણ કરી શકો છો, જેનાથી તમે રિલેક્સ પણ ફીલ કરશો, તમારી બોડીની એક્ટિવિટી થશે અને મેટાબોલિઝમ વધશે. તો ઓટોમેટિકલી ધીરે ધીરે વેટ લોસ થશે. અને વેટ લોસ 1 મહિનામાં કરવું અશક્ય છે. જે સેલિબ્રિટીઝ કરે છે એની વાત અલગ છે, કારણ કે એ લોકો પાસે એક 24 કલાક 24/7 ડાયટિશિયન હોય છે, એક વેટ ટ્રેનર હોય છે, એક जिम ट्रेनर હોય છે. એ લોકોની વાત અલગ છે. फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान को अगर वज़न कम करना है, 6 पैक्स करने हैं,
तो वो 1 महीने में भी कर सकता है। सर ऐसा होता है कि हम है ना सेलिब्रिटी की डाइट सुन के कि कीटो डाइट कर रहे हैं, आज क्रैश डाइट कर रहे हैं, हम खुद स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। बट बेसिकली उनका लाइफस्टाइल और हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत obviously। ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक्चुअली जो काम हम कर रहे हैं वो सेलिब्रिटीज से बहुत हटके है। उनका काम है, दैट इज ए प्रोफेशन, टू लुक ब्यूटीफुल एंड टू बी ग्रेसफुल, टू बी फिट एंड सब हर तरीके से वो अच्छा दिखे। सो उसके लिए उनके पास फिटनेस ट्रेनर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, ऑन बोर्ड हैं उनका ध्यान रखने के लिए। आप बीइंग अ वुमेन आप सिर्फ और सिर्फ फिट नहीं रहते, आप घर का ध्यान रखते हैं, आप घर में सब लोगों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं। तो अल्टीमेटली आप बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी कर रहे हैं। सो आप प्लीज़ अपने आप को एक सेलिब्रिटी से कम ना समझें। एवरी वुमेन जो ये एपिसोड सुन रहे हैं, आप सब बहुत स्पेशल हैं। आप जो कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड है। आप प्लीज़ अपना काम अच्छे से कीजिए एंड आई एम श्योर आप अपना काम अच्छे से करके अपना नाम रोशन कर रहे हैं ऑलरेडी। एंड प्लीज़ हेल्दी खाइए। लेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है सर, जो मैंने देखा है कि अगर खिचड़ी बनी है तो अगर घी डालना है तो सबको वो घी डाल के देंगी, लेकिन खुद के खाने में बोलेंगी नहीं नहीं मुझे घी नहीं चाहिए, मैं घी नहीं खाऊंगी। या अगर राइस की बात आती है तो लेडीज़ बहुत ज़्यादा हिचकिचाती हैं राइस खाने से। दे फील कि राइस से उनको ब्लोटिंग होगी या राइस खाने से उनका वजन बढ़ जाएगा। थर्ड थिंग जो मैंने नोटिस करी है वो है बनानाज, क्योंकि मैक्सिमम लेडीज़ जो मेरे पास काउंसलिंग में आती है बोलती है अंजलि हम बनानाज नहीं खाते, हमें वेट गेन नहीं करना। पर बेसिकली ये तीनों फूड जो है ये बहुत ही ज़्यादा आपकी एज के हिसाब से, आप किसी भी फेज़ ऑफ एज में है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घी आपके नरिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बनानाज आपके बॉडी के मैग्नीशियम आयोडीन लेवल को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड राइस तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का आप अवॉइड ना करें और सब मील्स लेने के साथ साथ फ्रूट्स, अच्छा घी, अच्छे क्वालिटी का जो आपने घर में बनाया है वो वाला घी, आपके राइस, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। और मैडम ये जो टमी फैट जो बढ़ता है इसके पीछे रीज़न जो मिल रहे हैं वो ऐसा बताते हैं कई गुणीजन की जो वाइट सॉल्ट है, जो ये सी सॉल्ट वो नहीं खाना चाहिए, रॉक सॉल्ट खाना चाहिए। और जो शुगर है, शुगर की जगह गुड़ को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और मैदा तो एवॉइड ही करना चाहिए। કારણ કે મિત્રો એક આયુર્વેદિક ડૉક્ટરને હું મળ્યો તો એમણે એવું કીધું કે જે મેંદો છે ને એ ડાયજેસ્ટ થવામાં 65 કલાક લે છે, વિચારો 65 hours ડાયજેસ્ટ થવામાં એને લાગે છે। એટલે અત્યારે મેંદો તમે ખાઓ, પિઝા કે કંઈ પણ મેંદાની વસ્તુ તમે ખાઓ તો એને પાચન થવામાં 65 કલાક લાગે છે। ऐसा उन्होंने मुझे बताया था आयुर्वेदिक डॉक्टर ने। तो ये कितना सच है मैडम? सर मैं ये मानती हूँ कि मैदा रियली कम ही खाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टॉप ही कर देना चाहिए। मैदा आप खा सकते हैं, लेकिन मैदा कोई भी चीज़ जो मैदे से बनी है वो खाने के 40 मिनट्स के बाद अगर आप ल्यूकवार्म वाटर ले लेते हैं तो ये आपकी बॉडी जो भी आपका फूड कंज्यूम किया उसको ईजिली कैटाबोलाइज कर देती है। दिक्कत कहाँ आती है? जहाँ पे हमारा खाना कैटाबोलाइज नहीं होता। सो अगर आप ल्यूकवार्म वाटर लेंगे लेडीज़ तो ईजिली आपका फैट डिपोजिशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, इवन दो अगर आपने मैदा कंज्यूम किया है। सेकेंड चीज़ जो आपने बताई नमक के बारे में, जब हमने नमक को आयोडीन के साथ इम्बाइब किया था, आयोडाइज सॉल्ट हम खाते हैं, वो एक रीज़न की वजह से था क्योंकि एपिडेमिक ऐसा था कि आयोडीन का कंटेंट लेडीज़ के अंदर कम हो गया था, उसको इंक्रीज़ हमें करना था। बहुत ज़्यादा गॉइटर इश्यूज़ एंड काफ़ी सारे इश्यूज़ उस टाइम पे आ रहे थे। तो ऑफकोर्स इस वजह से हम आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करते हैं, विच इज़ फाइन। अगर आप रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो ओके। अगर आप वाइट सॉल्ट भी क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में खाते हैं तो वो भी फ़ाइन है। जहाँ तक रही बात हमारी शुगर और गुड़ की, अगर आपका प्योर गुड़ है तो येस, गुड़ इज़ हमेशा एक शुगर कंटेंट से हमेशा बेटर ही है। पर अगर आप शुगर भी एक लिमिट में कंज्यूम करते हैं, अराउंड 10 to 12 ग्राम पर डे, इट इज़ ओके टू हैव शुगर ऑल्सो। सो हर एक चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। शुगर भी एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी
अपने अंदर कैरी करता है। सेम थिंग अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट भी हमें एक्स्ट्रा आयोडीन देता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है कि आप किस क्वांटिटी में उसको आप ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर आप क्वांटिटी का ध्यान रख के लेते हैं तो आप मैदा भी खा सकते हैं, आप शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। और मैडम ये शुगर के सब्स्टिट्यूट में अगर हम गुड़ लें तो वो फ़ायदा करेगा? हाँ सर, शुगर के सब्स्टिट्यूट में आप गुड़ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गुड़ बेटर है शुगर से? सर ऐसा कुछ बेटर एंड बेस्ट नहीं होता, बट या अगर गुड़ प्योर है, ओरिजिनल है, तो यस गुड़ इज़ फाइन टू हैव। और कुछ कहना चाहेंगे मैडम? आज वुमेंस डे है, तो वुमेंस को कुछ इंस्पायर करे, कुछ प्रेरित करे, ऐसी कुछ खास बात आप कहना चाहें? यस, जब मैं सेशन के बारे में बात करी थी तो सबने कहा था कि मैम प्लीज़ टिप टू टो आप सब कुछ बताइएगा कि हम कैसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको हेयर क्वालिटी अपनी बहुत अच्छी रखनी है तो आप अपने डाइट में प्रोटीन का, नेचुरल प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हैं। इसके आपके हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर अपने आईज शार्प रखना चाहते हैं तो कैरेट एवरीडे कंज्यूम कीजिए, इससे आपकी आईज़ बहुत शार्प रहेंगी। अगर आप अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो, तो आप विटामिन सी, जैसे आपका नींबू हो गया, संतरे हो गए, ये सब का इस्तेमाल आप बढ़ा दीजिए, इससे आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कलर इन्हेंस हो जाए तो आप दही और बेसन की चीज़ें जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे खाने में, उतना आसानी से आपका जो कलर है वो बहुत सूदिंग और बहुत ही ब्राइट रेडिएंट हो जाएगा। अगर आप बात करें कि मेरे लिप्स जो हैं वो रेडिश होने चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो गए हैं लिपस्टिक्स यूज़ करके, या बाय डिफ़ॉल्ट अगर थोड़े ब्लैकिश टोन में है, तो अगर आप वो रेडिश करना चाहते हैं तो बीट रूट आप अप्लाई भी कर सकते हैं एंड खा भी सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लेडीज़ में प्रॉब्लम आती है वो है आयरन की, कि आयरन की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है लेडीज़ के अंदर, एनीमिक होती हैं यूजुअली लेडीज़। तो आप जो है आयरन की कढ़ाई में अपना खाना बना के खाइए, इससे आपका आयरन कंटेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। प्लस जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है जैसे पालक है, मेथी है, इनका कंजप्शन आप करिए तो ऑटोमेटिक आपका जो आयरन लेवल है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल है, वो इंक्रीज़ धीरे धीरे हो जाएगा। प्लस ऑन प्लस आप बीट रूट अपने हेल्थ के लिए डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए, विंटर्स स्पेशली, क्योंकि विंटर्स में बीट रूट बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छे मिलते हैं। जब भी आपकी विंटर सीज़न आए तब ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत ज़्यादा खाइए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो इम्यून हो सके, इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। क्योंकि वुमेंस जो है वो एक आधार है एक अच्छी सोसाइटी का, वुमेंस एक बैकबोन है आगे लाइफ को बढ़ाने का। सो अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप सबका ध्यान रख पाएंगे। सो आप हेल्दी खाइए, अपने मील्स में अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई कमी मत कीजिए, ताकि आप जितने स्वस्थ रहेंगे उतना ही स्वस्थ आपकी फैमिली होगी। बहुत अच्छी जानकारी दी मैडम आपने। मैडम ये लीफी वेजिटेबल्स के बारे में जो आपने बताया, तो ये रात में भी खा सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जैसे कि पालक है या कोई भी लीफी वेजिटेबल है, रात में खाया तो नेक्स्ट डे कई लोगों को लूज मोशन भी हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये रात में खाना उचित है या नहीं है? सर रात में अगर आप अपना डिनर 7 बजे के आसपास कर लेते हैं तो बिल्कुल खाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरसों का साग, मक्की की रोटी, पालक एंड पराठा, ये सारी चीज़ें तो रात को सबको बहुत मज़ा आता है। सो डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ें रात को कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपका डिनर का जो टाइम है वो 7-7:30 के आसपास होना चाहिए, ताकि बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो है मिनरल्स का वो बहुत ईजिली हो सके एंड आपको डायरिया या और कोई इश्यूज़ ना हो। जी, और ऐसा भी कहते हैं ना कि खाने के बाद 100 कदम चलना, हाँ जी, तो वो भी कितना असरकारक होता है मैडम? सर मैं सबको यही बोलती हूँ, आप अपना लंच करें
उसके बाद भी आप एकदम जाके टीवी के सामने बैठ के सो मत जाओ कि बस अब मेरा रिलैक्सिंग फेज़ आ गया है या मेरा डिनर हो गया तो बस अब मेरे को रिलैक्स करना है टीवी, क्योंकि टीवी और मोबाइल की आदत अब सबको है। तो इससे हो क्या रहा है, बेसिकली आप मील्स ख़त्म करते ही आप टीवी के सामने बैठ जाते हैं या मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो नहीं, आपके थोड़े मूवमेंट्स होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि वॉक पे जाना चाहिए, कि वॉक पे जाना मैं दोबारा रिकमेंड नहीं करती मील्स करते ही, बट येस बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एकदम बैठे नहीं, सिटिंग पोजीशन में नहीं आ जाएं। आप थोड़े मूवमेंट्स 100 to 150 स्टेप्स आप मूवमेंट्स में रहे। अपने बर्तन खुद उठा के बाहर रखिए, थोड़ा किचन क्लीन कीजिए, तो वहीं आपके स्टेप्स काउंट डाउन हो जाते हैं एंड इससे आप बहुत ज़्यादा फिट रहेंगे। बेली फैट आएगा ही नहीं, वो पक्का है। और मैडम ऐसा आपकी तरह कई डाइट एक्सपर्ट ये भी कहते हैं ना कि जो भी अगर वेट लॉस करना है तो जितनी भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज से उससे 200-500 कैलोरी अगर आप कम लेंगे तो धीरे धीरे वेट लॉस होगा, ऐसा भी कहते हैं। यस, कैलोरीज डिक्रीज करने के लिए तो डेफिनेटली हम लोग रिकमेंड करते हैं अगर आपको वेट लॉस जर्नी पे जाना है। पर मैं ऐसा रिकमेंड करती हूँ कि आप उतनी ही कैलोरीज लो जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। इन जनरल फॉर गर्ल्स हमें 2000 to 2300 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड है एवरी डे के लिए। आप उतनी ही लीजिए कैलोरीज, बट अपनी फिजिकल एक्टिविटी लेवल बढ़ा दीजिए। तो जहाँ आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा वहाँ ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज यूटिलाइज हो जाएंगी एंड आप उतने ही फिट दिखोगे जैसा आप दिखना चाहते हो। सो कैलोरीज कम नहीं करनी हमें कैलोरीज उतनी लेनी है ताकि हम फिटर रह सकें। उसके अलावा सेम कैलोरीज एंड बैलेंस मील लेते हुए क्या ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ा दें, हम मेडिटेशन जैसे हमने बोला योगा करें, तो हम योगा करें, हम एक्सरसाइज करें, ताकि जो है हम डाइट के साथ साथ अपनी नीड्स को जो भी हमें चाहिए, हम जैसा फिट दिखना चाहते हैं वैसा दिख सकें। और मैडम दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने वेजिटेरियन डाइट के बारे में तो बताया है, अभी कई ऐसे भी हैं हमारे व्यूअर्स जो नॉन वेजिटेरियन हैं। हाँ जी। तो नॉन वेजिटेरियन जो व्यूअर्स हैं उनको भी क्या खाना चाहिए, मतलब फिश है, एग्स है, ऐसा कहते हैं कि रेड मीट तो बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए, तो कई लोग रेड मीट भी कंज्यूम करते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे मैम? फॉर नॉन वेजिटेरियन ईटर्स के लिए ये है कि अगर आप रेड मीट खा रहे हैं तो वो आप आफ्टरनून टाइम में कंज्यूम कीजिए एंड आपके जो एग्स हैं वो आप एवरी डे 2 to 3 एग्स कंज्यूम कर सकते हैं। जब भी आप मिल्क का कंजप्शन करते हैं रात को, तो मेक श्योर कीजिए कि आपके डिनर के मेनू में कोई भी नॉन वेज आइटम ना हो, चाहे वो चिकन हो चाहे मटन हो, ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिल्क एंड नॉन वेज आइटम अगेन क्लैशेस करके इट कॉजेज डायरिया एंड स्टमक डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं। जब भी आप आफ्टरनून में कोई भी नॉन वेज मील प्रेफर करते हैं, आपकी फ़िश हो गई या चिकन हो गया, तो रात को इट शुड बी लाइटर वर्जन। रात को जो है हमारा मील वो लाइट होना चाहिए, है ना। अगर आप डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। हाँ जी सर, यस सर। और प्रोटीन नेचर है एंड प्रोटीन को ऑफ कोर्स टाइम लगता है, क्योंकि हमारे इंडियन मील्स में जो प्रोटीन्स हैं वो पहले से ही कम है। हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट ओरिएंटेड इंडिया है। सो ऑफ कोर्स कि जब भी आप नॉनवेज खाएं तो गैप रखिए अपने मील्स के अंदर। प्लस अगर आप रात को नॉनवेज खाने वाले हैं तो आपका आफ्टरनून मील थोड़ा लाइट होना चाहिए, ताकि नाइट में आप अपनी मील अच्छे से इंजॉय कर सकें। एंड फिश की जहाँ तक बात है, ट्वाइस या थ्राइस इन अ वीक फिश खाना आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप खाते हैं आपके हेयर के, आपके आईज के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो आप फिश थ्राइस इन अ वीक ले सकते हैं। एंड नॉनवेज जब भी ले वो रात को तो मिल्क उसके साथ इंक्लूड ना करें। अगर आप दोपहर को लंच में नॉनवेज ले रहे हैं तो रात का मील जो है वो लाइट होना चाहिए। बटर मिल्क तो इंक्लूड कर सकते हैं ना मैडम, बटर मिल्क, छाछ जो होती है। सर छाछ तो यहाँ कोई छोड़ता ही नहीं है, नॉनवेज हो या वेज, छाछ तो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे राजकोट का। तो यस, छाछ। और ऐसा भी कहते हैं कि दही और ये जो छाछ है वो रात में नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे मैम? दही और छाछ का ऐसा है कि सर अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, अगर आपको कोल्ड एंड कफ ऐसा रहता है कि वो जाता ही नहीं है, या कोल्ड एंड कफ आपको हुआ है, तो उस फेज़ को आप छोड़ सकते हैं। बाकी गुजरात का जो क्लाइमेट है वो इस तरीके का है कि आप
दोपहर को छाछ लें या रात को छाछ लें, वो हमारी बॉडी को सूट करता है। यहाँ का क्लाइमेट इस तरीके का है, तो छाछ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी बॉडी ब्लोटेड रहती है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं या सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है, तो रात को दही एंड छाछ हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। उसकी जगह पे आप थोड़ा मिल्क ऐड कर सकते हैं, मिल्क एंड बाखरी आप खा सकते हैं। वो एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री मील है रात के लिए, अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ रहती है। अदरवाइज तो हमारे घर में भी सर पिज़्ज़ा के साथ भी सब छाछ पी रहे होते हैं, कहते हैं पिज़्ज़ा है बट ठीक है पर छाछ चाहिए, कोला नहीं चाहिए। सो लेडीज़, कोला का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी हमारे पास छाछ है, तो छाछ इज़ ओके। अगर आपको इश्यूज़ हैं तो येस, छाछ आप अवॉइड कीजिए एंड आफ्टरनून में लेके यू कैन फुलफिल योर सैटरडे। મિત્રો, BS9 વિશેષમાં અત્યારે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ ચર્ચા ચાલી રહી છે, ખાસ ડાયટ માટે, અને લેડીઝ સ્પેશિયલ આ એપિસોડ છે કારણ કે આજે વુમેન્સ ડે છે। અંજલિ મેડમ સાથે વાત કરી રહ્યો છું। अब मैडम, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है जी, ये अभी कॉमनली बहुत देखा गया है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जो लेडीज़ के अंदर, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी और कैसे अवॉइड करना है वो डिप्रेशन? पोस्टपार्टम डिप्रेशन बेसिकली आफ्टर बर्थ आता है, जब आप अपने बेबी को बर्थ देते हैं। क्योंकि क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे तो सब होते हैं हमारे साथ, है ना, घर पे सब हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा केयर मिलती है एक वीमेन को ऑलवेज। तो क्या होता है कि जैसे ही डिलीवरी होती है, बेबी आता है, वैसे पूरा ध्यान मदर से हट के सिर्फ बेबी के ऊपर चला जाता है। सो वहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट होता है कभी कभी कि ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, बेबी की और भी एक्टिविटीज़ हमें नोटिस करनी है, प्लस फैमिली का आपसे अटेंशन डिविएट होके वो पूरा बेबी पे चला जाता है, तो कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन आता है। सो लेडीज़, बिल्कुल भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेबी का अच्छे से ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, जस्ट समझिए कि ये भी एक फेज़ ऑफ टाइम है। एंड फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस फेज़ में आप वीमेन को, वो मदर को आप अकेला मत छोड़िए, आप उसे ऐसा फील मत कराइए कि अब बेबी इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग। आप मदर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना वो बेबी है। फैमिली का जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा उतना ही वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं आएगा एक लेडी के अंदर। एंड आप जितने हेल्दी मील्स कंज्यूम करेंगे वो डिप्रेसिव स्टेट से बाहर आएंगे। सो फैमिली के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप मदर का ध्यान रखिए ताकि ये डिप्रेशन फेज ना आए। मैडम, प्रेगनेंसी के दौरान भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो क्या ध्यान रखें लेडीज़ खास करके? प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में हमेशा वॉमिटिंग की, उल्टी, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिसिन ले सकते हैं, प्लस आप एक चूरन बना सकते हैं, इलायची एंड मिश्री आती है धागे वाली, उसको मिक्स करके आप एक चूरन बनाएंगे तो उल्टी से कई बार वो चूरन बहुत हेल्प करता है कि आपको उल्टी ना आए। आप लौंग भी मुंह में रख सकते हैं, ये भी बहुत हेल्प करता है कि उल्टी ना हो। फिर भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिर से हमारा आयरन जो होती है वो टैबलेट स्टार्ट हो जाती है, एंड बहुत लेडीज़ को वो आयरन टैबलेट सूट नहीं करती। मैंने मेरे पहले सेशन में भी कहा था कि आयरन अब्जॉर्प्शन अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो विटामिन सी को साथ में लीजिए। तो आप नींबू पानी के साथ मिड मॉर्निंग में, मतलब आपके ब्रेकफास्ट से 1 घंटे बाद एंड लंच के 1 घंटे पहले जो है आप ये नींबू पानी अपने आयरन टैबलेट के साथ लीजिए, तो उतना एब्जॉर्प्शन जो है आपका आयरन का वो बहुत अच्छा होगा। आप आयरन की कढ़ाई में खाना बना के खाइए तो पूरे प्रेगनेंसी में आपको आयरन जो आपके लेवल्स हैं वो कभी नीचे नहीं जाएंगे। प्लस जो अच्छे फ्रूट्स हैं, आप जितने फ्रूट्स खा सकते हैं आप प्लीज़ सारे फ्रूट्स अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। एंड जब लास्ट सेमेस्टर तक हम आते हैं, लाइक 7th 8th मंथ 9th मंथ की मैं बात करूँ, तो 8th मंथ से ही आप अपना मिल्क इनटेक जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए। इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है, बेबी को नरिशमेंट बहुत अच्छा मिलता है। प्लस अगर आपको कोई क्रेविंग्स होती हैं तो प्लीज़ आप अपनी क्रेविंग्स कीजिए फुलफिल, क्योंकि यही एक फ़ेज़ है जहाँ पे आपको डिफरेंट फूड खाने का बहुत ही ज़्यादा मन करेगा। प्लस आप अपनी एक्सरसाइज, अपनी वॉकिंग हमेशा कंटिन्यूड रखिए फ्रॉम डे 1। जिस दिन से आपको पता है कि आपने कंसीव किया है वहाँ से लेकर 9th मंथ तक, जब तक अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है कि डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है फॉर बेड रेस्ट, आप अपनी वॉकिंग साइकिल हमेशा कंटिन्यूड रखिए। इससे बहुत ईजी होता है डिलीवर करना बेबी को।
सो वॉकिंग या थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज आप पूरे ट्रेमिस्टर्स में कंटिन्यू रखिए। ऐसा मत सोचिए कि कंसीव कर लिया मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, बस मुझे अच्छा खाते ही रहना है। अच्छे खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ખૂબ જ સરસ જાણકારી મેડમે આપી મિત્રો. એમનો તમે જો સંપર્ક કરવા માંગતા હોય તો એમનું ક્લિનિક પણ છે અહીંયા રાજકોટમાં, સ્ટે એડેપ્ટ નામથી. એમણે ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ પણ બનાવી છે, ન્યુટ્રિશન પ્રોડક્ટ્સ એમણે બનાવી છે. સ્ટે એડેપ્ટ એમની બ્રાન્ડ છે અને એમનું ક્લિનિક પણ અહીંયા છે રાજકોટમાં જ. અને એ સિવાય જો આપ રાજકોટની બહારથી જોઈ રહ્યા છો તો આપ એમનો મોબાઈલ ઉપર પણ ફોન ઉપર પણ સંપર્ક કરી શકો છો. અને જેટલું પણ એમણે અહીંયા કહ્યું મિત્રો, ખાસ તમારા કોઈ પણ નજીકના ડાયટિશિયન હોય, વેલનેસ એક્સપર્ટ હોય, ન્યુટ્રિશન એક્સપર્ટ હોય, એમનો સંપર્ક કરી, કારણ કે બધાનો બોડી સ્ટ્રક્ચર અલગ હોય છે. દરેકના બોડી સ્ટ્રક્ચર અલગ હોય છે. કોઈને વજન ઘટવામાં વાર લાગે છે, કોઈને ઝડપથી ઘટી જાય છે, કોઈનું ડાયજેશન પાવર ખૂબ સારું હોય છે, કોઈનું વીક હોય છે. એટલે કંઈ પણ હોય, તમને એવું લાગતું હોય તો આજકાલ શું છે, બધું સોશિયલ મીડિયામાં જોઈને લોકો પોતાના ઉપર પ્રયોગ કરવાનો ચાલુ કરી દે છે. પણ નહીં, એવું ના કરતા અમારી એ જ સલાહ છે, તમે બેટર છે કે તમારા ડાइटिशियन अथवा अंजलि मैडम नो તમે संपर्क करो. मैडम आपका नंबर एक बार फिर से बता दीजिए और आपका एड्रेस भी, जो राजकोट से हैं लोकल, तो वो आपका कांटेक्ट कर सकें. या स्टे एडैप्ट, राज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मालवीय चौक, डॉक्टर याग्निक रोड, ये इस एड्रेस पे आप आ सकते हैं. मालवीय चौक से जस्ट नेक्स्ट नियर बाई ये हॉस्पिटल. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7990215060. आप इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. थैंक यू. જોતા રહેજો BS9 વિશેષ પ્રભાત સાથે. આપનો આગામી દિવસ શુભ રહે, મંગલમય રહે એવી શુભેચ્છા સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.